ओए ओए आवाज नहीं आ रही है। Good afternoon, students. Am I audible? Am I audible? Please reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in our last class, we discussed about the different methods of the pollutant collection system. ठीक है, एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था. तो in our first class we discussed about this sulfur dioxide collector, that is wet scrubber type system. Okay, and then we discussed about its advantages and disadvantages, and the disadvantage was that the pressure of the gas, flue gas जो निकल रही थी, that was declining, and to push the gas out from the system we need to heat up the system, so additional power is being consumed to expel the gas out of the system, and additional work is being done. So that's why we opted for electrostatic precipitation systems, or you can say the flue gas precipitation system. फिर हम जब बड़े प्लांट्स की बात करते हैं तब वहां पे हम लगवाते हैं FGDs. ये FGDs क्या है? FGDs होती हैं flue gas desulfurization, because your flue gas are contaminated with several other components. Okay, that includes your sulfur, your nitric oxides. Okay, so that these pollutants need to be removed before letting this gas out from your plant or the power plant, right? सो इसके अंदर हमने एक रीजनरेटिव टाइप एंड दूसरा और नॉन रीजनरेटिव टाइप सिस्टम पढ़े. सो नॉन रीजनरेटिव और रीजनरेटिव में क्या है? रीजनरेटिव में मतलब ये है कि जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं, अगर उनके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, सो यू कैन यूज इट, वहां उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, मीन वी आर रिकवरिंग इट फ्रॉम आवर फ्लू गैसेस. बट अगर हम जब बात करते हैं नॉन रीजनरेटिव टाइप्स की, तो हम उनको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. सो पहले में तो हमें मोल्टन फॉर्म में जो था सल्फर मिल रहा था, दूसरे में हमें डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा था, और तीसरा जो नॉन रीजनरेटिव टाइप था उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के कंबाइंड के फॉर्म में हमें मिल रहा था. सो दैट वाज अ नॉन रीजनरेटिव टाइप सिस्टम. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नॉक्स. ओके, then the particulate emission, that is PM, and we discussed about what is particulate matter and कैसे उसको collect कर रहे हैं हम. ठीक है, स्मोक, फॉग, फ्लाई, सिंडर्स के बारे में हमने डिस्कस किया. फिर देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट सिस्टम्स फॉर कलेक्टिंग दिस माइन्यूट पार्टिकल्स. बट पता चलता है कि मैकेनिकल जो सिस्टम्स हैं, ये दीज आर मैकेनिकल, मतलब जो यहाँ पे काम हो रहा है, ये जो आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के थ्रू जैसा भी आप प्रेशर चेंज करके या वेलोसिटी चेंज करके आप ये कर पा रहे हो, तो एफिशिएंसी उतनी जितनी हमें चाहिए उतनी अचीव नहीं हो पाती है. सो फॉर दैट वी नीड
assistants from other engineering branches also. So हमने एक modify system बनाया, that is electrostatic precipitator. ये wet scrubber हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Okay, now new term जो आज का start करेंगे session, that is electrostatic precipitator. Okay, so last के recap में किसी को कोई issue है, then they can ask me. If you are not able to understand anything in our last, what we have covered in our last class, you may ask. Okay, I'm giving you 30 seconds so that you can raise any questions if you have any query. Then we will move to electrostatic precipitator. Okay, so no one has any doubt? Shall we move? Yes, sir. Yes, Jitendra Rana, Akash, Abhishek. No, sir. Okay, shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so एक बार मैं इसका आपको बताता हूँ कि थ्योरी क्या है, then I will show you a diagram, then I will show you a video कि how this electrostatic precipitator is working, because ये आपका जो है electrostatic precipitator, इसकी efficiency काफी ज्यादा है, and आजकल जो हमारे pollution controlling norms जो आ रहे हैं वहां पे इस तरह की डिवाइस बहुत ही इफेक्टिव है. ठीक है, सो एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है हमारे सामने. देखो, पानी को भी हम कंटेमिनेट कर रहे हैं, एयर को भी पोल्यूट कर रहे हैं, बट ये है कि आप पानी का जो कंजप्शन कर रहे हैं पूरे दिन में वो इतना नहीं है एज कंपेयर टू योर एयर, बिकॉज विदाउट एयर यू विल डाई इन जस्ट 1 or 2 minutes, लेकिन पानी के बिना आप एक दिन बिता सकते हैं. ठीक है, तो पानी को फिल्टर करने में जो टाइम लग रहा है वो इतना नहीं है, और हमें उसकी क्वांटिटी भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम उसको धीरे से फिल्टर करके कर सकते हैं. लेकिन एयर जिसमें हम ब्रीथ कर रहे हैं वो हमारे लिए भी लीथल है, और जो और दूसरे जीव जंतु हैं ओके उनके लिए भी दिक्कत है. तो हमें जो एयर है उसको क्लीन रखना है, दैट इज आवर प्राइम कंसर्न. अगर हम आज की बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल सो टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस गोल. ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ यू are burning crackers on Diwali? This is my humble request, please. एक बार बताएंगे कौन कौन जलाता है, ये कौन कौन जलाने वाला है, एंड द क्वांटिटी. कोई नहीं जलाता? मैंने जला था 2000. हाँ, No, sir. मैंने No. जला था सर 2000. ओके, और कौन कौन नहीं जलाता? नहीं जलाते सर. ओके, और जैनीस चौहान. सर मैं भी नहीं जला. ओके, जैनीस चौहान, वेरी गुड. जैनीस चौहान, ये मैं जिस बच्चे का नाम लेता हूँ ये क्लास में प्रेजेंट ही नहीं होते, या तो ये अपना जो है सिस्टम चला के छोड़ जाते हैं. आज इनकी खबर लेते हैं. ओके, सारे बच्चे अपने कैमरा ऑन सर मैं करो. प्रेजेंट हूँ. मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच्ची में क्लास ले रहे हो या सिर्फ फोन ऑन करके बैठे हो. स्विच ऑन योर कैमरास. मैंने कैमरे के लिए बोल दिया है, अभी मेरा भी कैमरा आ जाएगा. नाउ स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, आई वांट टू सी. देखो जैनिस कहाँ पे है? वेयर इज जैनिस? जैनिस इज मिसिंग, नॉट टेकिंग क्लास. जितेंद्र प्रसाद लेने गया सर. देखो ये जितने भी नहीं दिख रहे हैं ना ये सब एब्सेंट, इन सबके एब्सेंट मार्क करूंगा. जितेंद्र चौहान, अंकित शर्मा, अभी नाम लिख लेता हूं इनके. दे विल बी मार्क्ड एब्सेंट टुडे. सर मैं प्रेजेंट हूँ. कौन बोला है ये? रौनक. रौनक कहाँ है? शकल तो दिख नहीं रही है. मैंने अच्छा, लिखा सर ये. रौनक, जिसका शकल दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, सिर्फ उनकी अटेंडेंस होगी आज. मुझे नहीं दिख रहा. जितेंद्र राणा, जैनीस और अंकित, बाकी सब दिख रहे हैं.
and I'm marking absent for all 3 students today, 23, 22 and roll number 6. Okay. तो भाई इस humble request, please contribute towards the nature conservation. क्रैकर्स नहीं जलाने हैं. ओके, शपथ ले रहे हो आज हैं? Yes, sir. डोंट वेस्ट योर मनी, है ना. और तुम अपना जो पैसा है वो चाइना को दे रहे हो, उसकी Yes, इकोनॉमी sir. Yes, स्ट्रांग हो sir. रही है. यू आर मेकिंग आवर इकोनॉमी वीक. मिठाइयाँ खाओ, कुछ गिफ्ट्स खरीदो अपने लिए, कुछ कपड़े खरीदो. देखो आप नॉइज पोल्यूशन कर रहे हो, आप साउंड पोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, अपना पैसा खराब कर रहे हो और अपने दुश्मनों को बढ़ावा दे रहे हो. So I think these 4 reasons are sufficient so to say no to crackers on this Diwali. Okay, rest आपके ऊपर है, what you will do, क्योंकि मैं सबको मॉनिटर नहीं कर सकता, right? So electrostatic precipitator हम पढ़ रहे थे, टॉपिक पे आते हैं. An electrostatic precipitator, देखो यहाँ ये दिखाया हुआ डायग्राम छोटा सा, ये कुछ खास नहीं है, लेकिन I will show you a new picture of this. An electrostatic precipitator, in this device a very high voltage of around, you can see the voltage that is around 30 kilowatts to 60 kilowatts. इतनी हाई जो है पोटेंशियल डिफरेंस की एनर्जी आपको उसको देते हैं, इतनी हाई वोल्टेज इसको देते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स विल डेवलप, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज विल टेक प्लेस. वहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन होने लग जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. तो वहां से जो भी पार्टिकल निकल के जाएगा उसके ऊपर बम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स उसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं. फिर आगे जैसे वो जाता है, वहां पे हमने प्लेट्स लगाई हुई हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं. Then these positively charged plates attract these negatively charged particles towards them. और जहां वो आते हैं चार्ज 0 हो जाता है, उसके पास चिपक जाते हैं. फिर हमारे पास वहां पे वो हैमर्स लगे होते हैं छोटे छोटे, वो पीरियडिकली उसको रैम करते रहते हैं, प्लेट्स को हैमरिंग करते रहते हैं. उसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स उसके ऊपर चिपके थे वो लूज होकर नीचे गिर जाते हैं हॉपर के अंदर. एंड देन फ्रॉम द हॉपर वी कैन कलेक्ट दीज पार्टिकल्स और उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. ओके, ये क्या हो गया इसको, एक सेकंड. कहाँ चला गया? एक मिनट दिखा रहा हूँ. ये आ गया. ओके, ठीक है. तो एक बार इसकी कंस्ट्रक्शंस देखते हैं क्या है. तो क्या कह रहा है, द पार्टिकल्स in the gas stream acquire charge from the negatively charged wires and the arc then attracts to the ground plate. Means जो positively charged plate है उसकी तरफ ये attract होते हैं. The grounded plates are periodically rammed, मतलब उनको हिटिंग किया जाता है, धीरे धीरे उनको हिट करते रहते हैं periodically, ताकि जो इसके ऊपर पार्टिकल्स जो चिपके हुए हैं वो नीचे गिर जाएं और एक हॉपर के अंदर कलेक्ट उनको हम कर सके. राइट. So in this type of collector, care must be taken to see that the large quantity of unburned gases does not enter the precipitator. In such a mixture enters, if such a mixture enters, the power should be turned off. Otherwise, there will be an explosion because of the constant sparking between the wires and the plates. The collector की जो efficiency है, the collection efficiency is around 99%. मतलब आपने जो इसके अंदर धूल भरी हवा भेजी वो 99% जो है प्यूरिफाई हो जाएगी. ओके, सो इट इज अ वेरी गुड फिगर, एन एफिशिएंसी ऑफ 99. इफ वी आर अचीविंग दैट मींस वी आर डूइंग आवर वर्क बेस्ट. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर सुटेबल फॉर पावर प्लांट्स. कौन से वाले पावर प्लांट्स?
where fly ash content is very high. Okay, and the fly ash having high electrical resistivity does not separate in the electrostatic precipitator. जो इलेक्ट्रॉन रेजिस्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हो पाते पार्टिकल्स फ्लाई गैस के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर है वो फेल हो जाता है. So this problem can be resolved by injecting sulfur trioxide into the exhaust gas, will improve the conductivity of fly gas. This again pose a problem of discharging objectionable sulfur trioxide into the atmosphere. देखो ये हमने जो एस कलेक्शन वाला प्रोसेस था या पर्टिकुलेट मैटर वाला था, ये तो हमने सॉल्व कर लिया. बट now sulfur trioxide will be there in the atmosphere. That will also lead to the air pollution, right? So एक बार इसकी इमेज देखते हैं. मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इसका एक बार प्रेसिपिटेटर का. So this is the image. You can see this is very high voltage. Positive charge plates are there. These red color plates are positively charged. Okay. These are positively charged plates. You can see. Okay. And this is your negatively charged plate. यहाँ पे. This is negatively charged. This is negatively charged. अब जब यहाँ से इसमें से हमारी फ्लू गैस जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है लीकेज हो रहा होगा. And these electrons will charge these dust particles. Okay. Get negatively charged. सब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. And you know the property कि like charges repel each other. ये रिपेल करेंगे आपस में. And alike charges attract each other. Right. So एक छोटी सी क्लिप देखते हैं how this precipitator is working. Okay. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Are you able to see this video on your screens? Please let me know. So this is the video showing how the electrostatic precipitator is working actually in its practical applications. Okay. ESP. So this is the ESP. Electrostatic precipitator is a very advanced air pollution equipment that works on the principle of electricity. पीछे की बैकग्राउंड म्यूजिक सुन रहा है आपको जो ये बोल रहे हैं? यस. वीडियो की आवाज आ रही है? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. थोड़ी थोड़ी आ रही है. ओके. अब बताना. Static precipitation. ये आ रही है? It can capture even the finest of dusts. It has a very high efficiency. And it can achieve emission levels of less than 10 milligram per nm3. It has very low pressure drop of less than 20 millimeters water column. आ रही है आवाज? ESP. When flue देखो अब यहाँ पे these are your negatively charged electrodes और ये देख रहे हो इसके ऊपर से फ्यूम्स निकल रहे हैं. दैट इज द इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज जो हो रहा है यहाँ से, लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरी हाई वोल्टेज अक्रॉस दीज electrodes. gas with dust particles is passed. Now through black color the dust particles are now getting charged. Electrons are released. The high voltage current is passed through the anodes. The leakage of current from the anodes is called corona. These electrons charge the dust particles negatively. The negatively charged particles sticks to the cathode. This process is called collection. Gas along with suspended particles enter the ESP through the CFD optimized splitter and GD screen, which evenly distribute the यहाँ से जो ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा बॉक्स टाइप, दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूनिट और यहाँ से आपके फ्लू गैस आ रही है एंड दिस आर नाउ expanded in this with this help of this diffuser.
diffuser plate which uniformly distributes this flow gas across all the channels that are provided into your ESP system, right? Flue gas across the entire ESP. Electrodes in the center of gas flow is maintained at high voltage. The entrained particles are given an electrical charge when they pass through the high voltage electric field. This forces the charged particles to migrate towards the collecting electrodes. The collected particles are then dislodged from the electrodes to the hopper by means of wrapping. ये this is the wrapping process हो रहा है. ये steel plates जो जिनके ऊपर आपके जो dust particles जो S में थे present वो इस पे collect हो गए. PM 2.5 से लेके 10 microns तक के छोटे छोटे particles जो हमें दिखते भी नहीं है उनको भी ये capture कर लेता है. Okay, and now these hammers are striking these, or you can say ramming these plates so that these small particles get settled down और यहाँ से नीचे आके hopper में इनको हम collect कर सकें for easy disposal, right? The hopper is evacuated continuously through the dust handling systems. And dust handling system so जो लगा के पूरा इसको हम collect करते रहते हैं यहाँ से और जहाँ भी हमें dispose of करना है उसको लेके चले जाते हैं. Okay, and the clean air is released from the chimney to the surrounding ambient. ठीक है. Now it's describing its components. This is inlet funnel terminal, hoppers, structure on which this is mounted, SS storage, ओके. ठीक है, ये समझ में आया कैसे वर्किंग हो रही है इसकी? यस. समझ में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन कैसे काम कर रहा है? बताइए. यस स्टूडेंट्स. यस सर. यस सर आ गया थोड़ा. क्या 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 समझ नहीं आया? यस रौनक. यस सर. एनी डाउट तो बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा. सर ये सर एज अ फीडर काम करता है क्या? नो नो नो. फीडर क्या मतलब? फीडर क्या समझ रहे हो? मुझे दोबारा बताओ, आप क्या समझ रहे हो इसे? फीडर्स तो सर वो क्या बोलते हैं, वो कोई मटेरियल को फ्लो करता है, सॉलिड मटेरियल को. नहीं, हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, मुझे बताओ. ये तो सर फ्लू गैस के बारे में वो कर रहे हैं. तो फ्लू गैस क्या होता है? दिस इज द कंबस्टेबल प्रोडक्ट्स. कंबस्शन के बाद जो प्रोडक्ट बताते हैं बाय प्रोडक्ट, और हमें इसे कोई एनवायरनमेंट में sir. रिलीज करना है. एंड वी आर स्टडीइंग द पोल्यूशन कंट्रोल स्टेप्स कि हम पावर प्लांट्स में कैसे पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो ये आप फीडिंग का Yes, sir. सिस्टम क्या बोल रहे हो? फीडिंग तो थोड़ा ना हम अभी से प्रोडक्शन गैस का प्रोडक्शन थोड़ी ना कर रहे हैं. ये तो बायो प्रोडक्ट है, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट को गंदा ना करे इसको इंश्योर करने के लिए हम ये सिस्टम्स लगा रहे हैं. इसकी वर्किंग में sir. कोई डाउट है तो मुझे बताइए. If you have any No, query sir, or working doubt में. in the working of this ESP system, then let me know. Shall we move? Yes sir. So again, there is a different type of system, that is baghouse filter system. Baghouse filter system में क्या होता है, एक मैं आपको दिखाता हूँ इमेज. These types, देखो ये वाला सिस्टम इधर लगा हुआ है ना, ये यहाँ होता है, ये बैग्स लगे होते हैं एज अ फिल्टर. जैसे गाड़ी में फिल्टर लगा होता है ना आपका, एयर फिल्टर फॉर क्लीनिंग द एयर, ताकि डस्ट पार्टिकल्स आपके फिल्टर में रुक जाएं और क्लीन एयर आपके इंजन में जाए, ताकि इंजन लाइफ ज्यादा रहे. सिमिलरली यहाँ पे एक बैग्स होते हैं ये, एंड बैग्स के थ्रू हम एयर को यहाँ से जो आपकी फ्लू गैस है उसको निकालते हैं. एंड दीज बड़ी जो आपके कोर्स पार्टिकल्स हैं या सैंड पार्टिकल्स हैं या अदर फ्लू गैस पार्टिकल्स हैं, दे गेट स्टक इनटू दिस बैग्स
and clean air is escaping from this bag house filter. और जब हम बैग हाउस फिल्टर्स को हमें साफ करना होता है तो हम रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करा देते हैं एयर हाई प्रेशर पे, तो इसके जो पोर्स जो चौक हुए रहते थे वो खुल जाते थे. Okay, now I will show you the image of bags being used in the system. So these are different types of bags you can see on your screen. इस तरह के बैग्स होते हैं, इनके अंदर से हम डालते हैं फ्लू गैसेस. तो फ्लू गैस जो क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, वो अंदर ही रह जाता है और एयर यहाँ से निकल जाती है इन बैग्स के थ्रू, पोर्स के थ्रू, राइट. नाउ जब हम बात करते हैं इस वाले सिस्टम की, तो इसको हम कहाँ लगाते हैं? तो यूजफुल इन रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर वेयर लो सल्फर कोल इज यूज्ड. जब जो कोल हम यूज कर रहे हैं पावर प्लांट्स में, अगर उनकी सल्फर कंटेंट लेस है तो वहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा, जो आपकी पूरी ओवरऑल कॉस्ट है ना बैग हाउस फिल्टर की, उसमें 20% कॉस्ट इट्स सेल्फ आपके बैग की है. यानी कि जो आप फिल्टर्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, उनकी कॉस्ट लगभग 20% है. मतलब अगर आप 1 करोड़ का सिस्टम लगाते हो तो रफली 20 लाख का तो आपका बैग का खर्चा है, और उसकी लाइफ 1.5 साल से लेके 3 साल तक है. मतलब आप उसको अगर प्रॉपरली क्लीन करें और टाइमली सर्विस दें तो 3 साल चलेंगे, अदरवाइज दे विल get degrade in 1.5 year. So you will have to reinvest 20 lakh rupees again after 1.5 साल के बाद. Okay, so this is an expensive procedure. दूसरा, the bag house filters is usually cleaned by forcing air in the reverse direction. उसके लिए भी हमें सिस्टम लगाना पड़ेगा रिवर्स डायरेक्शन में, इतने हाई प्रेशर की एयर के लिए. दे नीड लार्ज फिल्टर एरियाज ऑफ अबाउट 6.5 मीटर स्क्वायर पर मेगावाट पावर जनरेशन. 6.5 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए. बैग्स का एरिया अगर निकालोगे ना, जैसे 2 पाई RH, एक अगर सिलेंड्रिकल बैग है तो उसका एरिया आएगा 2 पाई स्क्वायर H. ऐसे इतना एरिया जो होगा, कितना एरिया चाहिए? 6.5 मीटर स्क्वायर पर मेगावाट प्रोडक्शन के लिए. सो इट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग एरिया, तो उसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी. तीसरा, although bag filters are expensive yet they are being widely used in coal power plants because इनकी applications इतनी easy है, तो छोटे plants में इसको easily हम use कर लेते हैं. Now next comes your solid waste disposal system. So for the fossil fuel fired power plants, considerable amount of solids in the form of ash is discharged because coal के अंदर कुछ combustible product होता है जो जल के आपको hot gases मिलती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसा portion भी होता है जो जलता नहीं है, that is non combustible part, and that non combustible parts get accumulated and in the form of ash, और उसको निकाल पाना is a very big challenge for us. उसी के लिए हम पूरा system लगा रहे हैं. So that is in the form of solids, so that we have to implement a system for solid waste disposal. So this ash is removed as a bottom ash or the sludge from the furnace. The fossil fuels fired system also discharge solid waste such as calcium and magnesium salt generated by absorbing SO2 and SO3 by reacting it with limestone. तो limestone के साथ CaSO4 और CaSO3 के फॉर्म में हम इसको कैल्शियम के सॉल्ट्स के फॉर्म में भी निकाल लेते हैं बाहर, राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर थर्मल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल पोल्यूशन? यस, एनीवन? थर्मल पोल्यूशन से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल पोल्यूशन? बताइए. ऐसा पोल्यूशन जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे. हाँ, इंटर मींस यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. थर्मल रिलेटेड टू द टेम्परेचर ना. तो द डिस्चार्ज जो भी आप कर रहे हो, अभी हॉट गैसेस छोड़ रहे हो एनवायरनमेंट में, वो भी थर्मली पोल्यूशन है ना. आप इननेसेसरीली हीट इनपुट कर रहे हो सिस्टम के अंदर जिसके रिक्वायरमेंट नहीं है. सिमिलरली आप जो कंडेंसर के लिए पानी यूज कर रहे हो, जो आप अपने कंडेंसर में स्टीम को कंडेंस कर रहे हो, रैंकिन साइकिल के बारे में सोचो, जो उसमें जो कंडेंसर होता है हीट एक्सचेंजर, जहां पे हम अपनी जो वेट स्टीम आ रही है फ्रॉम द टरबाइन की एग्जिट से, उसको हम कंडेंस कर रहे हैं दोबारा, ताकि पंप की थ्रू मदद से उसको दोबारा बॉयलर में हम भेज सकें हाई प्रेशर पे. अदरवाइज वी नीड अ वेरी वेरी बिग योर पंपिंग स्टेशंस. तो पंपिंग वर्क को कम करने के लिए वी आर रिड्यूसिंग द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस, और यू कैन से द स्टीम, उसको कंडेंस कर रहे हैं. तो वहां से निकाल के लेके गए
तो उसको ठंडा करने के लिए जो एनर्जी हमने इस्तेमाल करी, मतलब जो पानी इस्तेमाल किया, वो भी तो गर्म हुआ, उसको हमने डिस्पोज कर दिया दोबारा से रिवर बॉडीज में। तो इननेसेसरी यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडीज। सो दिस इज how you are polluting the water bodies in the form of thermal, means heat, or you are putting heat into that system। उनको requirement नहीं है उस heat की, लेकिन आप unnecessarily उसको दे जा रहे हो। So the thermal power station invariably have a very large discharge enormous amount of energy in water, since water is one largely used to condense steam। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। If this heated water from the condenser is discharged into the lakes or rivers, the water temperature increases and the ability of water to hold dissolved gases। जैसे कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, as the temperature rises, the dissolvability of oxygen in water decreases। तो जब ऑक्सीजन डिसॉल्व, ऑक्सीजन जो पानी के अंदर वो घटेगी, तो आपकी जो मेराइन लाइफ है, जो आपकी मछलियां हैं, वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, और गिल्स क्या करते हैं, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं। बट बिकॉज ऑफ द दिस डेफिशिएंसी इन ऑक्सीजन द मेराइन लाइफ विल सफर। ओके, मछलियां मरना शुरू हो जाएंगी। तो मेराइन लाइफ है एक बहुत ज्यादा ये दुष्प्रभाव है। सो अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस the dissolved oxygen will be as low as the aquatic life will be dying, right। लेकिन अगर कोल्ड रीजन्स हैं, जैसे आपके मान लो कनाडा हो गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, सो वहां पे जो टेम्परेचर है वो इटसेल्फ बहुत कम हो जाता है इन विंटर्स तो स्पेशली। तो वहां पे अगर इस चीज को हम पानी में डिस्चार्ज कर रहे हैं, गर्म पानी फील्ड्स उसमें अपनी आपकी रिवर बॉडीज में, तो वहां तो ये बेनिफिशियल है। बट इन कंट्री लाइक इंडिया, जो आपकी ट्रॉपिकल रीजन में आती है, वहां तो वैसे इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो और आप एडिशनल टेम्परेचर अगर पुट करोगे पानी के अंदर, तो इट विल लीड टू वेरी ड्रास्टिक चेंजेस, राइट। Now next comes your TDI, means thermal discharge index। It is a ratio of the thermal power discharge into environment in megawatts। कितनी आपने हीट जो है मेगावाट्स में दी है, यानी मेगा जूल पर सेकंड कितनी आप हीट रिलीज कर रहे हो सिस्टम में, टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड इन द पावर प्लांट। आपके पावर प्लांट में कितनी पावर प्रोड्यूस हुई है, और उसके अगेंस्ट आप कितना जो है हीट इन्वायरमेंट में ऐड कर चुके हो। सो दैट रेशियो इज TDI। सो दिस इंडेक्स कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल वायोलेट योर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, but it should be as low as possible to improve the efficiency of plant as well as to keep the pollution levels under the permissible limits। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं मिनिमाइज, टू रिड्यूस द थर्मल पोल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम लेक्स और जो रिवर्स हैं जो कंटिन्यूस फ्लो में हैं, उनमें पानी ना डाल के हम सेपरेट कूलिंग पॉन्ड्स बना सकते हैं, या फिर हम कूलिंग टावर्स बना सकते हैं, ताकि वो पानी जो हमने हीट किया है उसको कूलिंग टावर की मदद से उसको ठंडा करें, फिर उसको हम भेजें। ठीक है, सो दीज आर 3 मेथड्स कूलिंग टावर्स। मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ, ये देखो दिखाता हूँ। दिस इज योर कूलिंग टावर, यू कैन सी यहाँ से पानी जाता है, ऊपर से नीचे बारिश की तरह गिरता है, एंड यहाँ से एयर जाती है और एयर इसको कूल करती है। ठीक है, और जब पानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाता है तो इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, राइट। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो फॉलोड इन द प्लांट्स विच आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द लार्ज वाटर बॉडीज, जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन कोई वाटर बॉडी अवेलेबल नहीं है, वहां हम इसको यूज करते हैं फॉर कंडेंसर कूलिंग के लिए। ठीक है, नाउ पोल्यूटेंट्स क्विकली देख लेते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो इसमें सबसे पहले आता है दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, दूसरा आता है वेस्ट फ्रॉम रिएक्टर्स सॉलिड लिक्विड गैसेस के फॉर्म में, देन थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन तो हम पढ़ चुके हैं। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक आपका हैवी वाटर और यू कैन से मॉडरेटर, और जो कूलेंट है उसके अंदर कोर के अंदर वो, दूसरा सॉलिड वेस्ट जो उसका जो फ्यूल है वो आफ्टर जब वो पूरा हमने उसको इस्तेमाल कर लिया फिशन रिएक्शन में, लेकिन अभी वो फिशन रिएक्शन करने के लिए लायक नहीं है, तो वी टेक इट आउट फ्रॉम द कोर और उसको स्टोरेज करना, बिकॉज इट इज नाउ स्टिल
रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, तो वहां से वो बार बार अपना अल्फा बीटा गामा रेडिएशन छोड़ते रहेंगे, सो वो बहुत ज्यादा लिथल है। तो उसको हमें रोकना है, ऐसी जगह रखना है जहां से वो लीक ना हो एनवायरमेंट में। So that is very big challenge for us. So this is the most dangerous and serious type of pollution. This is due to the radioactive elements and the fissible product in the reactor. The best way is to radioactive shield around the reactor. देखो इसके लिए मैंने आपको एक वो दिखाया था, एक बार दिया था एग्जांपल फॉर चर्नोबिल डिजास्टर, जो अब तक का सबसे खतरनाक डिजास्टर था। ये देखो, you can see this is how the reactor is being exploded because of some loops present in the system। और इसकी वजह से जो यहाँ 100 स्क्वायर किलोमीटर, एक 100 किलोमीटर का रेडियस मान लो आप, यहाँ से एक 100 किलोमीटर का ऐसे रेडियस मानो और उसको ऐसे घुमा दो, इतना एरिया उस टाइम उसको रशिया को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा, यहाँ से पॉपुलेशन को हटाना पड़ा। आज भी इस रीजन में कोई नहीं रहता। तो यू कैन सी 100 किलोमीटर का एरिया जो है सर्कुलर पोजीशन में अगर इवैक्यूएट कर दिया जाए तो कितने लोगों को डिस्प्लेस किया होगा, और कितना एरिया हमारा ऐसा पड़ा है जो हम एसेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द हाई लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स प्रेजेंट इन दिस एरिया। रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन इज वेरी हाई, राइट? So we have to control this pollution, okay? एक बार इसको देख लेना, I will share this PPT and again pollution from hydro and solar power plants। क्या आपको लगता है कि सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी पोल्यूशन करते हैं? यस, करते हैं। कैसे पोल्यूशन? तो इनडायरेक्टली ऐसा पोल्यूशन कुछ नहीं कर रहे, बट देखो अगर आप बात करें जो अभी नए मॉडर्न प्लांट्स लग रहे हैं वो क्या करते हैं, दे आर laying down the panels on the surface of water bodies, the floating solar power plants। तो फ्लोटिंग पावर प्लांट्स क्या करते हैं, दे रेस्ट्रिक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन द वाटर बॉडी। उसकी वजह से क्या होगा, योर प्रेसिपिटेशन, जो आपका वहां से वेपर फॉर्मेशन था और जो वेपर ऊपर जाते हैं, देन फॉर्म्स क्लाउड्स एंड क्लाउड्स कम टू लैंड एंड देन ब्रिंग्स रेन ऑन द लैंड। तो आपका प्रेसिपिटेशन जो था वहां पे, जो आपका वेपराइजेशन था, इवेपोरेशन प्रोसेस था, वो इतने एरिया में जितने में आपने पैनल लगा दिए वहां इवेपोरेशन होगा ही नहीं। तो इट विल हैव अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन किस पे, योर रेनफॉल पैटर्न। दूसरा, इट विल हैव इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द पॉन्ड और द सी जहां पे वो प्लांट लगा हुआ है, बिकॉज वहां का जो टेम्परेचर है वाटर का वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा। वही बात करते हैं अगर हम लैंड्स की, अगर हम लैंड पे हम लगाते हैं सोलर पावर प्लांट्स तो क्या होगा, आप पैनल्स लगा दो उस एरिया पे तो लैंड के ऊपर कोई भी सोलर रेडिएशन नहीं आएगा। तो सोलर रेडिएशन की वजह से जो आपके बैक्टीरियाज पहले मर जाते थे, नाउ दे विल नॉट गोइंग टू डाई, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहेगी। दैट विल इंक्रीज द थ्रेट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो आप ये नहीं मान सकते कि आप ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर रहे हो ये हमारे लिए लीथल है कि नहीं। यस, दे आर इनडायरेक्टली इफेक्टिंग आवर सिस्टम, बट हम उनको कैसे मिनिमाइज करें, दैट इज इन आवर हैंड्स, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोल्यूशन इन पावर प्लांट्स। वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो तब तक इसको रिवाइज कीजिए। आई विल शेयर दिस PDF in the group, okay? If you have any doubt you can ask me.